हम लोग अपने बिजनेस में ये कई बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे हम अपने टीम मेंबर्स को, कैसे हम अपने एचओडीज को ये समझाएं कि वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। वी ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स बट वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन देम व्हाट वी एग्जैक्टली वांट फ्रॉम देम। तो हम एक्चुअली कैसे हम अपने एचओडीज को, कैसे हम अपने टीम मेंबर्स को ये इनकरेज करें और ये कैसे चीज़ को एग्जीक्यूट करें कि वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएं, आइए हम आज ये प्रेजेंटेशन के थ्रू सीखते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैंने एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को दी थी। उस ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक टॉपिक ऑफ कंसर्न था, जहां पर वो चाह रहे थे कि वो अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करें, वो अपने एचओडीज को कैसे एनकरेज करें कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आइए हम ये प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं कैसे हम अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज कर सकते हैं। I still remember the day that I had come to your table in Shisha, where I was trying to kind of convince you to join GIL, and it's such a long, I feel now it's been such a long journey. I don't even remember कितना time पहले था वो. For the benefit of the few that don't know me well, let me introduce myself. My name is Ankur Kedia. I am so this is something that I really relate myself to. ये मेरे meaning, मेरे नाम का meaning यही है, that it's growth. And I'm here because my brother invited me. I'm here because I learned a lot. I keep learning a lot from all of you. I am here because I feel that I have a debt that I need to repay. So, but what do I do? So I am into, my company's name is Kedia Growth Services. My work is business consultancy services. So anything and everything that we do is to give clarity to the business and the business owner. We help the business and the business owner to define objectively what is it that they want to achieve. कोई नेट प्रॉफिट के लिए भाग रहा है, कोई फेम के लिए भाग रहा है, कोई सेल्स के लिए भाग रहा है, कोई नंबर ऑफ लोकेशंस के लिए भाग रहा है, कोई टीम साइज के लिए भाग रहा है. Everybody's aim is different. But in that journey, a lot of times that we lose the sight of what exactly we want to achieve. So we help in getting clarity. We help in planning the actions, we help in executing the actions, we help in reviewing the actions in every manner. And if there is complete clarity and if there is pure actions, then the growth is a byproduct. If you notice carefully, there is a full stop after clarity, there is a full stop after growth, but there is no full stop after. There is full stop after action, but there is no full stop after growth. So this is what we believe in. This is what I believe in. This is all about my work. So 9 months ago, I was asking somebody very successful to hire me as an assistant for free. And now we've completed consultancy services with 2 companies. I am currently consulting 5 companies. We have about 5 more projects that are in the pipeline. I'd like to say that I feel that I am the living proof of growth is life. I really feel that growth is absolutely necessary for life. And if you meet me 1 year from now, I think I will be operating in a completely different league. How do we make our teams, or how do we make our HODs take genuine responsibility of the business? Might be of the business or maybe a part of the business, but how do we make them actually take responsibility? How do we make our employees take the business forward? ये actually किसी का सवाल है कि नहीं है? If yes, please raise your hand. ये है, तो ये है, तो ये I think ये valid है discussion. I feel अगर ये नहीं होता तो फिर ये valid नहीं है. So let me try and give you. So there are many. How do we define how the path to actually reach us to a stage that हमारे employees actually leaders बने? There are many different ways, many different tools. I'm sure we have a lot of books and we can read and we can implement, and not just the books, we can obviously go to consultants and we can reach there. I am saying let me discuss one such tool that might help you to actually reach there. One such tool is MRM.
MRM is monthly review meeting. Monthly review meeting जो है, I don't think so it's anything new that I'm talking about, but monthly review meeting के there are two different aspects जो हम लोग डिटेल में कवर शायद नहीं करते हैं. So there is an objective aspect to it and there is a subjective aspect to it. Objective aspect वो है जो हम राहुल जैन के systems के थ्रू हम define कर सकते हैं, but there is a subjective aspect to it जो I think we learned about a lot of empathy from Harsh Neotia ji. So how do we implement that? So let's try and explore कि how can monthly review meeting help us actually get there. तो सबसे पहले आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे. ऑब्जेक्टिवली हम लोग मंथली रिव्यू मीटिंग, व्हाट इज इट डू यू थिंक दैट वी शुड एक्चुअली मेजर? व्हाट इज इट दैट वी शुड मेजर? KRAs KPIs एम्प्लॉइज का हो गया, वेरी गुड. और क्या मेजर करना चाहिए? डिपार्टमेंट का KRA. डिपार्टमेंट के KRAs. डिपार्टमेंट जैसे हमने 6-7 डिपार्टमेंट्स की बात की थी, ग्रेट. और ग्रोथ नंबर्स, लास्ट मंथ का क्या टारगेट था, हैव वी अचीव्ड, व्हाट इज इट? सो दैट्स द मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ग्रेट. और मैनेजमेंट बाय एक्शन. और सॉरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्रेट. और इज देयर एनी अदर स्टैट? सॉरी, वाइब्स क्या चल रहा है, एनर्जी मेजरमेंट. हाउ कैन यू मेजर दैट ऑब्जेक्टिवली? हाँ, रेटिंग देके आई थिंक उस पे नंबर्स डाल सकते हैं, करेक्ट. और इज देयर एनी अदर थिंग? सो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, क्या हम लोग इसको बेसिक 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डाल सकते हैं? नंबर्स हमने बात की, वो हम फाइनेंस में डाल सकते हैं. कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन की हमने बात की, वो हम सेल्स में डाल सकते हैं. कॉस्ट्स की हमने बात की, कॉस्ट रिडक्शन की, वो हम परचेज में डाल सकते हैं. ऑपरेशनली हम AI भी अगर यूज करके हम अपने ऑपरेशनली कॉस्ट हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमने कितनी अचीव की, वो हम ऑपरेशंस में डाल सकते हैं. तो इसमें अगर हमने ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में बात की, तो हम इसमें डिटेल में जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. हम ये डिटेल में डिस्कस करें तो फाइनेंस के बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं. आई होप ये सबके लिए विजिबल है. सेल्स के बहुत सारे नंबर्स निकल सकते हैं कि हम नए कस्टमर से कितनी सेल्स ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर से कितनी सेल्स ले रहे हैं, कैटेगरीज के हिसाब से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से कितना कर रहे हैं, कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कर रहे हैं, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कर रहे हैं, लीड्स हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, कितनी जनरेट कर रहे हैं, उसके कन्वर्जन रेशियोज क्या हैं. देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ डेप्थ दैट वी कैन गो टू. परचेजेस में टोटल क्या हो रहा है, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल परचेजेस कितनी हो रही हैं, कैश वर्सेस क्रेडिट परचेजेस कितनी हो रही हैं, कैश फ्लो हमारा कितना प्लान्ड और एक्चुअल चल रहा है, ऑपरेशंस के हिसाब से ऑन टाइम डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, डिलेड डिस्पैचेस कितने हो रहे हैं, आइडियल मैक्स स्टॉक कितना है, एक्सेस स्टॉक कितना है, प्लान्ड आइडियल मैक्स स्टॉक के हिसाब से क्या है, क्वांटिटीज इश्यूज क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या चल रहा है. सो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन कवर हियर. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर जिसमें हम लोग मंथली रिव्यू मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. एंड इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, नथिंग एल्स, प्योर नंबर्स. एंड दीज नंबर्स हैव टू बी सच दैट ये नंबर्स को कोई क्वेश्चन नहीं कर सके. दीज हैव टू कम ऑर्गेनिकली एंड ऑटोमेटिकली, कि ये कोई आदमी बैठ के फीड इन करके प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा है, ये बैठ के जेन्युइनली ऑटोमेटेड तरीके से आ रहे हैं, सो दैट नोबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली क्वेश्चन ये नंबर्स गलत हैं, ये फज्ड हैं. नाउ हाउ डू वी वर्क ऑन ईच पैरामीटर? नंबर तो निकल गए, नंबर निकालने के बाद हाउ डू वी वर्क ऑन ईच पैरामीटर कि हम एक्चुअली इंप्रूव करें? Anybody has an idea? जैसे मेजरमेंट आ गया, मेजरमेंट विल ड्राइव बिहेवियर, यस. सो पीपल विल वांट टू वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दोज नंबर्स, यस. सो ये ऑर्गेनिकली आ जाएगा जैसे आप नंबर निकालना चालू करोगे. हाउ डू यू वीकली एक्शन प्लान? सो वीकली एक्शन प्लान से भी पहले एक चीज आती है, वेरी गुड, एब्सोल्युटली असाइन अ पर्सन. यहां पर हु नॉट हाउ बहुत प्रोमिनेंटली काम करता है, बिकॉज एनीवेयर दैट यू वांट द एक्शन टू बी टेकन, यू वांट टू डेवलप लीडर्स, राइट? वो हर एक पैरामीटर पे एक पर्सन या एक HOD या एक
टीम मेंबर वो डिफाइन करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, जहां पर ही और शी विल एक्चुअली ड्राइव द नंबर्स। उसके बाद हम जैसे उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग। वी थिंक ऑफ आइडियाज कि हमारा एक्शन प्लान ए क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, सी क्या हो सकता है, डी क्या हो सकता है, ये इशू आया तो हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या हो सकता है, ये अगर सिचुएशन आई तो नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या हो सकता है। यू कंप्लीटली ब्रेनस्टॉर्म फॉर आइडियाज। आइडियाज जब हमारे खड़े हो जाते हैं, एक्शन प्लान ए बी सी डी सारे रेडी हो जाते हैं, उसके बाद क्या? 80-20, करेक्ट। सो यू इवेल्युएट दैट व्हाट इज अभी की करंट सिचुएशन में विच इज द बेस्ट आइडिया दैट यू शुड डू। अगर सिचुएशन चेंज होती है देन व्हाट इज इट द बेस्ट आइडिया दैट यू कैन इंप्लीमेंट, यू इवेल्युएट, करेक्ट। व्हाट इज इट दैट यू डू आफ्टर इवेल्युएट? सुपर, आप लोग को सब कुछ पता है। सो यू इम्प्लीमेंट द आइडियाज स्ट्रेट डाउन, जहां पर ये एक्चुअली एक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सो दैट वर्क गेट्स डन। बट इज इम्प्लीमेंटिंग द एक्शंस इनफ? यू ऑडिट मेजरमेंट जो है वो तो हमारी होती रहेगी, बट ऑडिट का मतलब ये हुआ कि हमने अगर say for example if we are talking about conversion ratios, sales, हमारा सेल्स प्रोसेस डिफाइंड है, 5 स्टेप्स का सेल्स प्रोसेस है। अब वो 5 स्टेप्स के सेल्स प्रोसेस में से फॉर इंस्टेंस कि हमारा लास्ट प्रोसेस है कि हम प्रपोजल देते हैं और प्रपोजल के बाद वी कन्वर्ट द क्लाइंट। अब हमने ये एक्शन प्लान ये रेडी किया कि ये कन्वर्जन रेशियो अभी हमारा जो है वो 77% चल रहा है, अभी 77% से हमें 80% प्लस पे जाना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट 3-4 एक्शंस दैट our team will take? Say for example he is the champion salesman and he will take about these 4 actions. अब ये 4 actions के basis पे हम we want the company's conversion ratio to reach 80% plus। उसका audit किया जाएगा कि वो चारों actions execute हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। So auditing is not the final numbers but of the actions that are actually taking place। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्लान। सो हमने क्या किया, हमने मंथली रिव्यू मीटिंग की, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए अपनी टीम के साथ, उसको एवेल्युएट किया कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्शन प्लान्स दैट वी डू, उसको इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट के बाद उसको ऑडिट किया। अब ये है हमारा फेज 1। उसके बाद आएगा फेज 2। फेज 1 को आप 1 मंथ रन कर सकते हो, 2 मंथ रन कर सकते हो, 3 मंथ रन कर सकते हो, बट देयर विल बी अ टाइम जहां पर आप कम से कम ऑडिट प्रोसेस को तो ऑटोमेट कर दोगे। यू टेम्पलेटाइज दैट एंड यू डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व एंड यू डू द MRM, यू मेजर, यू आइडिएट हाउ डू वी इंप्रूव, यू इवेल्युएट एंड यू इंप्लीमेंट। ऑडिट करने की आपको जरूरत नहीं है। इज इट पॉसिबल और इज इट इम्पॉसिबल? You mean automate audit? Automate audit. Is it possible? It is possible. It is possible. Already done. Awesome. Is it possible? सर यस नहीं मिल रहा है यार, यस नहीं मिलेगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा। हाँ, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, ग्रेट। फेज 3 हमारा आता है जब हम MRM करते हैं, हम आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम एवेल्युएट करते हैं, और जब हमने ऑडिटिंग प्रोसेस सेट कर लिया है तो हम अपने HOD को ही बोलते हैं कि तुम जाके इंप्लीमेंट करो। इज इट पॉसिबल? सो फेज 2 में हम फेज 3 में पहुंच सकते हैं, राइट? फेज 4 में इस तरह से पहुंचेंगे जहां पर आप सिर्फ MRM कर रहे हैं और आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद एवेल्युएशन भी HOD कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा है और ऑडिट भी कर रहा है। एंड देयर कम्स अ फेज 5 जहां पर आप सिर्फ MRM कर रहे हैं। टेल मी समथिंग, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रिमेंबर, पहले तो ये बताओ कि किसको साइकिल चलाना आता है? सुपर। अब आप मेरे को ये बताओ कि डू यू रिमेंबर द डे जब आपने साइकिल चलाना सीखा था? डे 1 क्या एज पे था अप्रोक्सीमेट, बता सकते हैं? 4-5 years, 4-5 साल। सो यू डू हैव अ वेग और अ क्लियर आइडिया कि आपने साइकिल चलानी कब सीखी थी, राइट? बट इज इट एक्चुअली ट्रू कि आपने वो सीखा था? It was not the day when you learned how to ride a cycle.
It was the day when your parents or somebody else from your family actually taught you. So what I want to explain you by this slide is that MRM में आप अपनी टीम को आप समझा सकते हो कि किस तरह से करना है, आप उसको गाइड कर सकते हो, आप IAIE अप्रोच आप ले सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली गाइड देम, बट देयर विल कम अ टाइम जब वो बच्चा अपने आप साइकिल चलाएगा एंड दैट इज वेयर यू ट्रस्ट इन देम. जब नंबर सारे उनके चल रहे हैं, द फेलियर इज देयर्स, द सक्सेस इज देयर्स. MRM में जो सेगमेंट हमने किसी और को हैंडओवर किया है, वो सेगमेंट का सक्सेस इज देयर्स एंड फेलियर्स इज देयर्स. ये जब हम एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं ट्रिकल डाउन द लाइन, ये एक्चुअली पॉसिबल है. तो द राइट लॉन्ग टर्म प्लान हमारा क्या होना चाहिए? राइट लॉन्ग टर्म प्लान ये होना चाहिए कि हम सिर्फ MRM कर रहे हैं. So I hope that I was able to give you some clarity, and I hope I was able to repay my debt. Thank you. Thank you. So I hope ये प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ में आया हो कि आप क्या क्या पैरामीटर्स अपनी कंपनी के मंथली रिव्यू मीटिंग को बिल्ड करने में आप यूज कर सकते हैं. अपनी कंपनी के लिए जब आप अपनी मंथली रिव्यू मीटिंग दैट इज MRM जब आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके कंपनी के हिसाब से जो जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं आप उनको यूज करिए. आपको पैरामीटर्स कुछ ट्वीक करने की जरूरत है, आप जरूर करिए. द figures that you calculate, the figures that you pay attention to should be completely customized and built according to your needs, your company needs. Second thing that I will talk about is जो phases के थ्रू हमने बात की है कि MRM को phase wise आप HODs को आप hand over कर सकते हैं. वो phase में एक phase से दूसरे phase पे जाने के लिए कोई fixed timeline नहीं है. एक phase से दूसरी phase में जाने के लिए आपको एक MRM, 2 MRM, 3 MRM लगे या ज़्यादा लगे, आप ज़रूर उसको गो थ्रू करिए. It depends on how fast do you want them to take on responsibilities. It also depends on how fast are they being able to take on that challenge. So it is dependent on how fast it is being executed. MRM जो है ideally gradually, it's a gradual process. जो अलग अलग phases हमने describe किया है वो gradually pass on होना चाहिए. Apart from that, monthly review meeting is one of the tools जो आप use कर सकते हैं to shift responsibilities or to empower your HODs or team members to take on responsibilities and accountability for their own specific departments. Apart from MRM, there are many other tools as well. If you have any queries regarding MRM, monthly review meeting, feel free to reach out to us, and I hope we have been able to give you clarity. Kedia Growth Services की तरफ से all the very best. KD